Okay. Now, any doubt in 1 mark of question? You are unable to find out or anything as such? No. Okay. So shall we continue? Yes. Okay. These are one of the most important short notes of this chapter: Nalanda, Takshashila, Varanasi, and Vallabhi. One will come definitely, right? In your exams, school exam also, and high chances the board. आएगा ही आएगा, ठीक है? Now see, first we will discuss about the Nalanda University. Now when we talk about the Nalanda University is the one of the most ancient university, one of the most successful university, one of the best university of the world of that time. यानी दुनिया की सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज में नालंदा यूनिवर्सिटी को गिना जाता है. तो आजा, चल आजा. So it was one of the best university of the world at that period of time, right? Why Nalanda University was told to be one of the best? The reason was from the whole world. मतलब दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. At that time when the Nalanda University was made, at that period of time Buddhist का culture बहुत ही ज़्यादा था. Means Buddhist influence was very high at that period of time. Buddhist and Jainism, right? So you will see the influence in the Nalanda University of two religion more. One is Buddhist and second is Jainism. क्योंकि उस वक्त वो peak पे था वो religion, right? तो उसका उस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा. Now, this university you will find where in the Patna. पटना में एक बदगांव करके गांव है, उसमें ये नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी बनी हुई है बदगांव के बीच, right? And who had made this university? It was made in the 5th century. Kumar Gupta had built a monastery here. फिर उसने monastery भी यहाँ पे बनाई. Right? Since the fame of Nalanda had increased, there were thousands of priceless treasures of manuscripts you will find in this university. मतलब treasures और manuscript का मतलब क्या है? जो भी scholars थे, उन्होंने यहाँ पे library में बहुत सारी किताबें लिखी थी. फिर उसको research किया था, उसके proofs, theorems, जो भी हम अभी देखने को मिलते हैं ना, तो वो सब कुछ उस वक्त इस यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाता था. मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी यानी टॉपिक हो, उसकी सबकी थीसिस आपको ये यूनिवर्सिटी में मिलती थी. There were this is a pious place of Indian culture. Pious मतलब बहुत पवित्र जगह. Students from various part of the world used to come here for study. Yun Sang आपको पता ही होगा, that person. He was a great traveler. He came to this place, right? The great traveler Yun Sang also came here. Today only the ruins of the great university, but amidst the ruins one can visualize the glorious culture of India. यानी आप अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आपको बस उसके पिलर्स ही आपको देखने को मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पिलर्स और उसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ही उतने बड़े एरिया में है, तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त वो जब बनी हुई थी तो कितनी ह्यूज, कितनी बड़ी थी. सो फ्रॉम दैट यू कैन विजुअलाइज दैट, राइट? नाउ ऐसा जैसे कि अभी आप IIT IIM में से पढ़ के जाओ तो आप बहुत ही आइडियल स्टूडेंट कहे जाते हो, राइट? वेरी educated or professionally very highly educated. तो उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी का ऐसा था कि if you will pass from the Nalanda University, you will be known as a very ideal student of the Nalanda. मतलब नालंदा से पास होके गए मतलब बहुत बड़ी बात है.
राइट. एंड इसका जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका फेम था फॉर 600 years, फ्रॉम 5th century to 11th century. ये सबसे ज्यादा फेमस थी उस वक्त पूरे वर्ल्ड में, राइट. It was said that the education of the Nalanda University was one of the best, and one of the biggest libraries in the world was in the Nalanda University. जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं लाइब्रेरी कहा जाता था. Many students of India and abroad used to come for study and research in the library of Taxila as well as in Nalanda University. Yun Sang took 657 books from here to China. मतलब जब वो यहाँ पे आया था तो इमेजिन करो वो अकेला बंदा ही 650, मतलब उसने रिसर्च के लिए कितनी 657 बुक्स, मतलब कितनी सारी बुक्स हुई. ये इतनी सारी बुक्स वहां पे लेके गया था और फिर उसको ट्रांसलेट किया था और उस पर रिसर्च किया था. क्या बोल रहे हो? हाँ, definitely if it was not permissible he could have not taken, right. So that was he had taken at that period of time. Now यून सैंग ने एक्चुअली, हमारे पास तो हिस्ट्री में मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे पास कोई डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ नहीं है हमारी हिस्ट्री के बारे में जो 5th या 11th सेंचुरी है, लेकिन यून सैंग ने अपनी बुक्स में लिखा था अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी. इसीलिए हमें पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या था. तो यून सैंग विजिटेड इन द 7th century. देयर वर, अब उसने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन कि क्या था उसमें. तो 7 ह्यूज हॉल्स, मतलब बहुत बड़े-बड़े हॉल्स थे जहां पे पढ़ाया जाता था. There were 300 rooms for delivering lectures. मतलब बड़े-बड़े हॉल्स जहां पे हमारी असेंबली होती है ना, उस तरह से बड़े-बड़े हॉल्स थे. उसके सिवाय 300 रूम्स थे जहां पे लेक्चर्स दिए जाते थे, राइट. स्पेशल मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. मोनेस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि जहां पे स्टूडेंट्स, जैसे हम हॉस्टल कहते हैं अभी, उसे मोनेस्ट्रीज कहा जाता था कि जो बाहर से जो स्टूडेंट्स आते थे वो कहाँ रहेंगे, तो फॉर उनके लिए ड्वेलिंग्स के लिए, मतलब उनको रहने के लिए, पढ़ने के लिए ऐसी जगहें बनाई जाती थी फॉर द स्टूडेंट. दे आर नोन एज अ मोनेस्ट्री. 100 villages were donated for university sustenance. मतलब कि ये यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ चार्ज थी, एक पैसा भी नहीं लिया जाता था स्टूडेंट्स, इंडिया को हो या आउट ऑफ इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ाई की जाती थी. 100 विलेजेस को डोनेट किया जाता था, मतलब 100 विलेजेस का जो टैक्स आता था वो इसके इस यूनिवर्सिटी के सस्टेनेंस में चलता था, यानी उसको चलान, पैसा तो चाहिए ना खिलाने पिलाने ये सब कुछ करने के लिए, तो उसके सस्टेनेंस में 100 विलेजेस डोनेट किए गए थे और सारे 100 विलेजेस का टैक्स का पैसा इट गोज टू द नालंदा यूनिवर्सिटी. Food and clothing facilities were provided free of cost from the earning obtained from those villages. It books repository, मतलब library area was known as a dharmaganj. This is a one mark question. During 5th to 11th century, Nalanda was a reputed as well as esteemed center of education. यहाँ पे ये नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म 11th सेंचुरी में खिलजी आया था, तो उसने पूरा उसको तोड़ दिया. ऐसा कहा जाता है कि खिलजी को यहाँ इंडिया का जो कल्चर था उससे सबसे बड़े ज्यादा परेशानी थी, तो उसने सबसे पहले धर्मगंज को जलाया, यानी वहां की लाइब्रेरी को जलाया. और इट इज अ प्रूफ मिले हैं कि जब धर्मगंज को जलाया गया, जब उसकी लाइब्रेरी को जलाया गया, तो वो लाइब्रेरी 3 महीने तक चली. सो इमेजिन करो उसमें कितनी बुक्स होगी कि वो लाइब्रेरी कंटिन्यूअसली 3 महीने तक वो लाइब्रेरी चली. सो इमेजिन करो कि हमारे पास कितनी थीसिस, कितने स्क्रिप्चर्स, कितने इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स होंगे वो, जो वहां के तब के उन्होंने जो भी स्कॉलर्स थे उन्होंने रिसर्च किए होंगे और वो सब जल गए. इमेजिन 3 months, 3 महीने किसे बोलते हैं. अभी कागज जलाओ 2 मिनट में जल के खत्म हो जाएगा, अब 3 महीने तक मतलब कितनी बुक्स जली होगी इमेजिन. तो ये इट्स अ ट्रूथ कि इस तरह का सिचुएशन था. अब नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से विलेज में है, क्वेश्चन पूछो, बात करो, ठीक है. कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पटना. देन हाँ, इम्पोर्टेंस नालंदा में कौन से 2 रिलीजन को दिया गया है, हाँ,
फिर ये एक एक्स्ट्रा है कि पिलिग्रिमेज महावीर स्वामी थे, जब महावीर स्वामी तब थे, वो यहाँ पे पिलिग्रिमेज पे आते थे और चतुर्मास करते थे। चतुर्मास यानी 4-5.5 महीने का उपवास होता है, वो महावीर स्वामी यहाँ पे करते थे। किसने मोनेस्ट्री बनाई थी यहाँ पे? कुमार गुप्ता ने। कौन सी सेंचुरी में बनाई थी? हाँ। देन इसमें who came in the 7th century in this university? Yun Sang, right? How many books Yun Sang taken away from here? Okay. Then how many halls were there in this? 7. How many rooms were there? How many villages were donated? 100. And what is the name of university? Sorry, what is the name of a library? Dharamganj. And from which century to which century it was reputed? 5th to 11th century. लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आंसर? आराम से लिख सकोगे। ये पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं जो मैंने पूछे। क्या मतलब? हाँ, पर 100 भी दिया है। अच्छा नहीं तो फिर मैं नहीं लिखना, मेरे में मुझे ऐसा याद है 100 विलेजेस। मैंने तो वो जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था, इसलिए मैनी विलेजेस ये कर देना। क्लियर एवरीवन? यस मैम। बोलो। वो उसके पास अच्छा है, लेके गया, 1000 और लेके जाता, बची तो रहती। उसने रिसर्च किया उस पे, हमारी ऐसा नहीं, इतनी हमारी इम्पोर्टेंट होगी कि यून सेंग उसको लेके गया। सोचो। चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ। ओके, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 5 ही है, 5 में तो मैं हूँ, 4 ही है। नहीं साक्षी मैम नहीं है, मैं ही हूँ। ओके, क्लियर? नाउ तक्षशिला। हाँ, पहले इंडिया में थी, हमारी थी, लेकिन फिर वो जब डिवीजन हुआ पार्टीशन में, वो रावलपिंडी चला गया पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान में। एंशिएंट यूनिवर्सिटी में तक्षशिला इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। तक्षशिला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी एलिट्स थे, मतलब एलिट्स मतलब प्रिंस थे, किंग्स थे, राइट, जो बड़े बड़े एडुकेटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, ये इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। So that is the reason Takshashila plays a very important role in the history. Ancient University of Takshashila was located at Rawalpindi of present Pakistan. It was the capital city of ancient Gandhar region. जो हमारा इंडिया का गांधार रीजन था, वहाँ पे एक्चुअली तक्षशिला थी। हाँ एग्जैक्टली वही रीजन, वही वहाँ जहाँ से गांधारी आई थी ना, जो उसका मायका था, दैट इज वेरी गुड। महाभारत का कमाल है। Now see, this is the only university after Nalanda University where a large number of subjects were taught. मतलब 64 subjects were taught in this university. यानी 64 subjects में politics आ गया, folklore, warlore आ गया, literature आ गया, इस तरह से ऐसे 64 subjects थे जो तक्षशिला में पढ़ाए जाते। नहीं, you have the options. जैसे अभी आपके पास options होते थे ना, तो उस तरह से वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। Most of the students stayed in the ashram to practice with guru. वहाँ पे ये सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था कि आपके जो गुरु होते थे उसके साथ ही आपको रहना होता था और उनके साथ ही आपको पढ़ना पड़ता था। And that is Guru Jivan, the disciple of Lord Buddha, learn the lessons of Ayurveda from here. जीवक की बहुत सारी बुक्स है आयुर्वेद में, जो बुद्धिस्ट यानी बुद्ध भगवान के डिसाइपल थे, मतलब चेले थे, और वो भी यहाँ से ही पढ़ के निकले, उन्होंने यहाँ पे आयुर्वेद पढ़ा था। देन चाणक्य है, जो कौटिल्य है, उसने अर्थशास्त्र यहाँ से ही पढ़ा था।
So that is the reason it is very famous. You know about Chanakya, right? अर्थशास्त्र मतलब economics. The composer of Arthashastra economics Kautilya studied here. According to a belief, this university was named after the name of Taksha. जो भारत हमारा भारत देश का नाम पड़ा ना, जो भारत राजा था उसका बेटे का नाम था तक्ष, और तक्ष के नाम पे से ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा. Brother of Lord Ram born in Raghupur. It was renowned education center of 7th century. मतलब 7th century में ये बहुत ही ज्यादा famous university थी. Students were free to study the subject of their interest. In spite of यहाँ पे ऐसे allotted थे students, मतलब एक teacher है मतलब 20 student को एक teacher पढ़ाएगा, उससे ज्यादा नहीं. It's 20 students for one teacher in that. So a limit allotted of 20 students per teacher. They used to teach even more. Students from distant cities like Varanasi, Rajgruha, Mithila, and Ujjain overcrowded the university. तो यानी हर जगह से यहाँ पे तक्षशिला में पढ़ने आते थे. अब कौन से बड़े लोग यहाँ पे पढ़े हैं? Prince of Varanasi and Prasenjit, the king of Kaushal, studied here. Right? जो पाणिनि थे ना, हमने उनकी पढ़ी है बुक का नाम, great poet grammarian Pani. Right? That also had studied here. Expert politician Kautilya मतलब चाणक्य, उन्होंने भी यही यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया. और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है तो तक्षशिला इज द बेस्ट सेंटर ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे एक सिस्टम था, दैट इज गुरुकुल सिस्टम. Normally students stay here with their guru and take the practice. उनके साथ ही पूरा दिन रहने का और उनके साथ ही पढ़ने का. मेन कौन से सब्जेक्ट थे? जो 64 सब्जेक्ट थे उसमें से ये सारे थे. वेद पढ़ाए जाते थे, मिलिट्री साइंस, क्योंकि वहाँ उस वक्त राजा थे, वॉर्स होती थी, तो मिलिट्री साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट था. गज विद्या मतलब के गदा के साथ और हाथी के साथ जो हम कैसे वॉर जीत सकते हैं, तो गज विद्या. आर्चरी का मतलब होता है वो राम भगवान करते हैं. हाँ ग्रामर, फिलोसॉफी, वॉर लॉ मैंने बोला कि किस तरह से लड़ाइयाँ की जाती, उसका पूरा सिस्टम सिखाया जाता था. एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? एस्ट्रोनॉमी मतलब जब हम हमारे यूनिवर्स में क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कॉन्स्टेलेशन है, स्टार्स है, यूनिवर्स है, उसके बारे में पढ़ते हैं. दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो जो स्टार्स है उसका जो कैलकुलेशन करके आप प्रेडिक्शन करते हो आपकी लाइफ का, यानी कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी. समझ में आया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस? Was given here. Chanakya, the mentor of Chandragupta Maurya, also studied here. Chinese scholar Fa Heng visited this university in the beginning of the 5th century. वो भी यहाँ पे आया. वो अच्छा है पढ़ने में, तो उसने हमको चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, तो आएगा ही ना. तेरे जैसे में से उसने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया. Yes, he was very simple boy. मतलब उसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं था. देखिए तो फिर तो उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, तो फिर he is something. पर आने दे, तेरा क्या जाता है? Takshashila now is ruined only are there. Nothing is there. हाँ, it is also ruined. मतलब अभी जितनी भी हम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं सारी ruined ही है. मतलब अब कोई ऐसे नहीं. 5th century मतलब अब सोचो हम 21st century में. Now तक्षशिला, बुलाओ वापस, क्वेश्चंस पूछो इसके. फिर चाणक्य बार-बार आएगा तो फिर बोलना नहीं. Now Takshashila is located where? In which country? What
was the ancient capital city where it was located? Nanda region. How many subjects were taught? Who studied Ayurveda? Disciple of Lord Buddha. The composer of Arthashastra, who is that? Right? From whose name this university name? Who was this? Son of Bharat, right? Bharat, sorry. Then how many students were allotted? What type of 20 students were allotted, right? Which king studied over here? What study education of Vedas, military science? इसमें से 4 5 6 7 नाम लिखते. Which Chinese scholar came here? Who was the mentor of Chandragupta? Chanakya. Now Varanasi, Kashi. Varanasi is actually Varanasi comes into a pilgrimage places. First of all, in ancient time, right now also Varanasi is one of the pilgrimage places. But when we talk about the ancient people, in the ancient time, Varanasi was the one of the important education center. मतलब ये जो universities वाराणसी यूनिवर्सिटी थी वो बहुत ही famous थी उस वक्त, right? And it used as a religious center for Aryan culture in Upanishads period. मतलब ये जैसे जैसे वो बढ़ता गया, आर्यन कल्चर आता गया, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस होती. King of Varanasi, Ajatashatru, was a great philosopher of Upanishadic age and great supporter of education. यानी वाराणसी में ही ये पढ़े हुए हैं. His name was Ajatashatru और उन्होंने उपनिषद्स में बहुत ज्यादा चीजें लिखी, मतलब उपनिषद लिखे हुए हैं. So that is the reason it was very famous. और ऐसा कहा जाता है, it is mentioned, हमारे जो बहुत सारी बुक्स है उसमें ये मेंशन किया गया है कि व्यास संहिता, that Maharshi Ved Vyas had his ashram in Varanasi. जो वेद व्यास थे जिन्होंने हमारा पूरा हिंदू कल्चर लिखा हुआ है, वेद व्यास ने, वो वाराणसी के ही थे. मतलब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी और अपना जो आश्रम था यहाँ से, मतलब वाराणसी से ही शुरू किया था. इसलिए मेन एजुकेशन सेंटर जो ब्राह्मण होंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में जो ब्राह्मण्स होते थे वो सब आपको पता है उनमें जनोई दी जाती है, राइट? जो ब्राह्मण्स हैं उनको पता, तो वो कंपलसरी था कि उस वक्त आपको जनोई लेना होता था एंड देन यू हैव टू गो टू द वाराणसी. फिर आपको पूरा स्टडी करना पड़ता होता है, बाल वाल निकाल के पूरा नहीं पहनाते हैं. हाँ, फिर वो आपको वो पूरी वो सेंट लाइफ पूरा वहां पे पढ़ाई करके आपको, इट्स अ ट्रूथ. तो पहले के जमाने में जितने भी ब्राह्मण्स थे उनको कंपलसरी वाराणसी जाना पड़ता था. हाँ मेरे बेटे, मतलब जो ब्राह्मण्स है उसमें ये सिस्टम था पहले, क्योंकि यू हैव टू गो, क्षत्रिय भी करते थे, बट इन दिस वाराणसी जो हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, दैट सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द वाराणसी, राइट? इट मेंशन. अब ये वाराणसी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, जैसे बुद्धा है, फिर चैतन्य महाप्रभु है, ये सबने शुरू किया था. आदि शंकराचार्य है, इन सबने अपना प्रीचिंग यहाँ से शुरू किया था. मतलब सबसे पहले उन्होंने कथा जो थी वो कहाँ से, प्रीचिंग कहाँ से शुरू की थी? वाराणसी. यहाँ पे लिखा हुआ, लॉर्ड बुद्धा चोज वाराणसी a suitable place for the propagation of his preaching. Important philosopher Adi Shankaracharya, जो हमारे धर्म गुरु भी कहे जाते हैं, Adi Shankaracharya, had to move to Kashi to adopt the new principles of Vedanta. Vallabhacharya ji and Chaitanya Mahaprabhu, the pioneer of Pushtima, attained prestige for the Vaishnava sect in Kashi. Majority of scholar families of Punjab had to migrate to Kashi, while a few families migrated to Kashmir. Kashmiri पंडित कहे जाते हैं ना वो.
Many other princes come for education in Varanasi. Monastery at Sarnath became a famous education center under the patronage of Emperor Ashoka. उसने तो पूरी monastery खोली थी कि जहाँ पे students रह सके और वाराणसी में पढ़ सके. तो ये clear हुआ क्यों famous है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा सा. ओके. नाउ सी, एक सिंपल में समझा देती हूँ. वाराणसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट pilgrimage center from the 7th century. Second, the most important education center of ancient time, right? वेद व्यास ने यहाँ से व्यास संहिता लिखी थी. वेद व्यास ने यहाँ से व्यास संहिता लिखी थी, राइट? फिर लॉर्ड बुद्धा, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु and Vallabhacharya, they had also started their ऐसा रखते हैं. तो वल्लभाचार्य, इसमें वल्लभाचार्य and चैतन्य महाप्रभु. Okay, so they all started their preachings from Varanasi only. So that is the reason Varanasi became very famous. फिर monastery of Sarnath had been started by Ashoka over here. So that is the reason Varanasi is very famous. चलो थोड़ा reading कर लेते हैं. बहुत हमारे यहाँ तक का reading हो गया है. लगा लड़कों से हम क्या एक पीरियड लड़कियों का, एक पीरियड लड़कों का. नेक्स्ट टाइम लड़के याद रखना. राजवी fifth century. Next book में then the fate of Nalanda had been given. Then when thousands of priceless treasures of manuscripts. It was a pious place of Indian culture. Students from various parts of the world used to come here for study. The great traveler, you will say, can also came here. Today only the room of the great university, but at least the ruins also can visualize the glorious culture of India. दोनों को बात कर, फिर आपका टॉपिक है.
Next. Adi Shankaracharya. Now, Vallabhi. Vallabhi was a very famous university of Gujarat. Right? Now, Gujarat in the 7th century, जब 7th century थी, Gujarat was one of the important education centers. उसके दो reasons थे. First तो शीशा और यानी दरिया के पास था ये यूनिवर्सिटी. So from all over the other, countries also, students comes to study here. It was very easy for them to come to study for here. That was also the reason, right? There was a significant contribution of contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and a youth center of education. Whose contribution was the most in this university? Vansh dynasty. Vansh dynasty. कौन सा वर्दी Vallavi. Vallavi. How? Now, Vansh dynasty. Vidyadham, Vallavi, a well-renowned and a youth center of education. उसे विद्याधाम वल्लभी को विद्याधाम भी कहा. That was the other name of Vallavi University.
Vallavi was the center of Hinayan cult of Buddhist religion. Actually मतलब उस वक्त Buddhist religion बहुत peak पे था, right? तो जो Hinayan cult था वो पूरा ये यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट रिलीजन का ज्यादा प्रोपोगेशन था, मतलब बुद्ध भगवान के जो प्रीचिंग्स थे वो ज्यादा पढ़ाए जाते थे. Renowned and a youth center in the middle of 7th century, Buddhist scholars like Srimati and Gurumati were the leading principles of Vallavi. It's a one mark of question. Who were the leading principle of Vallavi? Srimati and Gurumati, right? In the middle of 7th century, ये हो गया. The Brahmin students from the distant area of Ganga and Yamuna used to come here for higher studies. यानी जितने भी उस जगह पे रहते थे गंगा यमुना and all, they come here to study in Vallavi University. Then higher studies. Chinese traveler Singh noted that Vallavi completed with the completed नहीं है, competed. Completed is not there. It's a spelling mistake. Chinese traveler Singh noted that Vallavi competed with the famous education center Nalanda, which was located at eastern part of India. यानी इस तरह से थे कि ईस्ट के लोग जितने भी थे वो सारे नालंदा में रहते थे और वेस्ट के जितने भी लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके पास कौन सी यूनिवर्सिटी इजी पड़ती थी? वल्लभी. तो वो वेस्ट और ईस्ट में कंपटीशन था, right? So the competition was between Nalanda and Vallavi. Why? Because same century they had started and they are one of the most important university of India. नहीं, साउथ में होगी लेकिन इसमें हमें ज्यादा दिया नहीं, right? So we don't know about that. Now in 775 AD, Arabians attacked. मैं एक पैराग्राफ खा. Vallavi was capital and an international port. मतलब वल्लभी एक जगह थी, कैपिटल था और इंटरनेशनल पोर्ट था by 480 to 775 AD. The ruler of Vallavi belonged to Maitrak dynasty. ये याद रखना है. रूलर कौन थे? Maitrak dynasty. Contribution किसका था इस बनाने में? तो Vans dynasty, right? So Maitrak dynasty, and he patronized education and university as well. It is also notable that royal people of Maitrak dynasty were not Buddhist. क्योंकि ये तो 448 से 700 मतलब 300-400 साल आ गए ना बीच में, तो उसमें ये जरूरी नहीं था. मैत्रक डायनेस्टी फॉलोवर नहीं थे बुद्धिस्ट के, राइट? वंश डायनेस्टी थी जो फॉलो करती थी बुद्धिज्म. The name Maitrak dynasty were not Buddhist. However, they were the helping the institution. Then in 1775 AD, Arabians ने हम पे अटैक किया Maitrak dynasty पे, and Maitrak dynasty defeat हो गई and university was closed. फिर उसको पूरी university को बंद कर दिया गया. The name of famous scholars were written on the gate. मतलब वहां से जितने भी पढ़ के गए हैं तो वहां पे बहुत बड़ा गेट है मैत्रक ये वल्लभी यूनिवर्सिटी का, उसपे उन सब के जितने भी वहां से पढ़ के गए हैं उनके सबके नाम एनग्रेव्ड किए गए हैं. So scholars were written on the gate. Scholars by showing their erudition were getting higher rights in Raj Sabha. ऐसा कहा जाता था. Erudition का मतलब होता है कि इसकी क्या बोलते हैं? Erudition मतलब आपको एक पेपर मिलता है ना कि we studied from here, the certificate, right? If you will show that certificate, you will get high position in the king's what we say king's की हाँ, जैसे कि बहुत अच्छी पोस्ट पे आपको रख दिया जाता था अगर आप वल्लभी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो तो. So in Raj Sabha, knowledge, worship and particular system of education made the university famous not only in India but the civilized world of that time. Students from India and abroad used to come for education in this university, right? It was an international university in the real sense. मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये यूनिवर्सिटी थी और इसमें हर एक ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वर टॉट हियर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे. द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज डन थ्रू द चैरिटी ऑफ किंग एंड लैंडलॉर्ड्स. जो उस वक्त के राजा थे वो पैसा देते थे या लैंडलॉर्ड्स होते थे वो ये यूनिवर्सिटी को चलाने में. पहले ऐसा था कि जो जहाँ पे पढ़ते थे पहले
कम, अब फीस और ये सब सिस्टम हो गया है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था। एजुकेशन मतलब विद्या के लिए पैसे कभी नहीं लिए जाते थे। Actually showed the loyalty of people towards the university. It was world renowned University of Indian Education for the knowledge of art and science. यानी art and science के लिए ये सबसे famous university थी, that is Vallabhi University. क्योंकि इंटरनेशनली होगी ना, एक तो सी शोर के पास थी, कोस्टल रीजन पे थी, तो वहां से लोग आराम से पढ़ने के लिए आ सकते थे इंटरनेशनली, राइट। हाँ, नालंदा में भी है क्या? हाँ, नोटेड, यानी से ही नाम है उसका। कहाँ पे? It's noted that Vallavi completed, यानी उसने उसकी बुक में लिखा हुआ है, पीरियड खत्म होगा ना तभी रुक जाएगा। क्लियर? होमवर्क देखना भी है, टेक आउट योर होमवर्क एवरीवन। एक्सरसाइज में दे देती हूँ, एक्सरसाइज एज अ होमवर्क, छोटा सा तो है, देखो मैं अभी सॉल्व करवाती हूँ।
In those notebooks I have written incomplete, they all have to complete theirs. I want 20, which I have given. I not wanting that. Other than that, I want 20. Clear everyone? Yeah. पहले तो मैंने ली है उसकी अलग 20 बार. आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. Same. Write down the questions which you have to write down. Give information about Vallabhi Vidyapit. Vallabhi Vidyapit. Give a note on. Give a note on. Nalanda University. Describe medieval literature. क्या सारा नहीं लिखना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सबका लिखना है. मेन. Discuss Ramayana next. Discuss Ramayana and Mahabharata as great epics. Ramayana and Mahabharata as great epics. कितने विचार हुए? Give introduction about the Vedic literature of India. Give introduction about Vedic literature of India. Vedic literature of India. ये 5 क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं. ये सारे पांचों 5 आपको होमवर्क में लिख के आने. क्लियर एवरीवन? सारे पॉइंट्स में लिखेंगे. पॉइंट्स में नहीं हुआ अगर आंसर तो मैं फिर उसको क्रॉस कर दूंगी और फिर से लिखना पड़ेगा. ऑफ इंडिया, वैदिक लिटरेचर ऑफ इंडिया, वेदास के बारे में. Online students, how you people are going to submit me? Maitri, Dhuvil, Krishna, Tushit. अब तो तू जान सकता है जितनी बार जाना है तब. Bye.